we will be able to write down the program, and it is working properly now. So we'll do first addition of two 16-bit numbers. Then we will see the addition of two 8-bit numbers. Already we have seen, but उसमें भी modifications करना है. But whatever the modifications we are doing, that we have to see properly. What modifications are we doing? Okay, are you able to see my screen now, everyone? Yes, sir. Okay. Now everything remains the same, the procedure, everything. जब हम editor window में जाते हैं तो वापस ही program को change करना है. So I will start with the program, that is edit. Okay. I will be writing down the addition for two 16-bit numbers. Okay, addition of two 16-bit numbers. So you can just write down add AD16. I am writing down AD16. So we'll come to know this is the program for addition of two 16-bit numbers. Okay, two 16-bit numbers. That is more important. So edit AD16.asm. If you don't want to mention the name here itself, you can just write down the only edit. You will go to the editor window, and after writing down the program, it will ask you to save as what. Then you have to give the name. Okay. So मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले ही. So it is AD16.asm. So this is the window, editor window, and this is the file name which already I have given. Now please pay attention. I will explain you while writing down the program. The first line, see, we have to define some instructions in the data segment and some instructions in the code segment. Whatever we will be writing down in the data segment, that is actually we are reserving the memory location. We are reserving the memory location in the data segment. How comes here? The first line is data. Now here, पहले मैं लिखता हूँ, then I will explain. Data segment, data underscore segment and segment. Okay. Now what do you mean by this? What do you mean by this? Now here I have written the name of the segment as data segment. आपको लगता है तो आप यहाँ पे आपका खुद का नाम लिखो, खुद का नाम लिखो. Okay. Even I can write down here showbit segment. But whether I am talking about data segment or code segment, that will be written in the code segment itself. वो कैसे लिखना है I will show you. Okay. So I won't write my name. I am just mentioning the data underscore segment, so that I will come to know that whatever I will be writing down here, that will be the related with the data segment, and my memories are reserved in the data segment. How that memories are reserved? This is my first statement. Then comes, now I am adding two numbers, so I am keeping these numbers in the memory. So I am reserving the memory location for these numbers. So which are the two numbers? First is the num. पहली बात तो मैं लिखता हूँ num1, that is a variable, and you know that I am using two 16-bit numbers, so I cannot use the directive that is db. db stands for define byte. I should use dw. So it is a dw, define word. Define word you means it is 16 bits. So I am taking one number as 1020h. 1020h. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है 102h? Now, can any one of you tell me how many memory locations will be reserved to store this number 1020? Any one of you? 2 bytes. Sir. Yes, 2 bytes. That means you can give the answer कि sir, two memory locations are stored. One memory location for lower 8 bits, that is 20, and the other memory location for higher bits, that is 10. Because you know that each memory location will have only 88 bits. Will have only 8 bits. So one location for 20 and the other location for 10. Am I right? Do you agree with this? Yes, sir. Yes.
प्लीज कहीं अभी दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोइंग विद द टैजर, ओके, क्योंकि इवन आई हैव ट्राइड अ लॉट, ये प्रॉब्लम दे रहा था, बट आई थिंक दिस विल वर्क वेरी स्मूथली इन योर सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे जो भी डाउट है अभी मुझे पूछो। दिस इज num2, आई एम टेकिंग द सेकेंड वेरिएबल। अब इसको भी मैंने, मुझे मेमोरी लोकेशन में इसको रिजर्व करके रखना है नंबर को विद द वेरिएबल एज num2। तो अभी उसको भी 16 बिट है तो उसको भी डी डब्ल्यू, ये डी डब्ल्यू क्या है, डिफाइन वर्ड है, और उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव। ये डायरेक्टिव टॉपिक हम अलग से लेने वाले, but you have to see this DW as a directive and not an instruction, because I have already told you instruction will be converted into machine code, but your mnemonics but your directives will not be will not occupy the, or will not be converted into ones and zeros. That is machine code. So that is the difference between the instruction and the directives. So here directive is DW, okay. So the second number what I am taking is 2030H. यहाँ पे भी वही बात है। अभी इसको भी num2 को कितना मेमोरी लोकेशन लगेगा, 2 लगेगा। एक मेमोरी लोकेशन में 30 और दूसरे मेमोरी लोकेशन में 20, बिकॉज 30 इज ऑफ 8 बिट्स, 0 को जाएगा 0000 और 3 को जाएगा 0011। तो दोनों मिला के हो गए 8 बिट्स, और ये हायर 8 बिट्स है 20, ये जाएगा दूसरे मेमोरी लोकेशन, ओके। ये होने के बाद now again now even I want to reserve the space to store my result, so what I am doing, I am writing down one more variable with the name as sum. Now you know that addition of two 16-bit will give me 16-bit result, so this has to be also defined by DW, that is a directive. DW is a defined word, and I do not know the answer. Initially you can write down 00H, okay, or else अभी मैं 00 इसलिए लिख रहा हूँ कि there won't be any garbage value, okay, वहां पे 00 रहना चाहिए। या फिर मैं एक काम करता हूँ, I can write down question mark, okay, because I do not know the result. After the result gets generated, that result should be stored into this particular memory location with the variable as sum. And if I ask you how many bytes or memory location it will consume, the answer is again 2, because addition of this 2 will give me the result. Now can you tell me the addition of this? So 00 gives you 0, 2 3 gives me addition 5, 00 again gives me 0, and 1 plus 2 gives me 3. So your answer comes to be 3050. So again your memory location, that is 3050, will occupy two memory locations, that is 2 bytes. So the last question is regarding the data segment. Can I say that I have reserved total 6 bytes of memory, 6 bytes, or you can say I have reserved total 6 memory locations. One memory location for lower 8 bit of num1, second memory location for higher 8 bit of num1, third memory location for lower 8 bit of num2, fourth memory location for higher 8 bit of num2, fifth memory location for lower 8 bit of sum, and sixth memory location which is higher 8 bits of sum. So total 6 memory locations. कहाँ पे रिजर्व है, डेटा सेगमेंट में, ओके, डेटा सेगमेंट में। सो क्या राइट, हाँ सर एक डाउट है सर, ये क्वेश्चन मार्क का वापस बताओ ना सर, इसका क्या एग्जैक्टली मतलब होता है? इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द रिजल्ट, okay, so that result should be stored into the variable sum. So I do not know the value of that, which will be stored into the variable of sum. So I can either mention 00 or else you can put the question mark. क्योंकि जब हम कोड सेगमेंट में जब इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और जो भी कैलकुलेशंस होगा num1 plus num2 का, वो ऑटोमेटिकली मेरे सम में जाने वाला है, ओके। So I want that there won't be any garbage value. That's why I can write down here 00H, or you can just write down the question mark. That is the only meaning here. ये सर एक और डाउट है
सर हाँ आपने बोला सर इधर 6 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व होंगे, तो हाँ सर वो जो निमोनिक्स है सर, उसका जो जो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो कोड सेगमेंट में स्टोर होता रहेगा ना फिर सर? हाँ ना, तो निमोनिक्स मैंने कुछ लिखा ही नहीं ना। निमोनिक्स मैंने क्या लिखा, निमोनिक्स में कोड सेगमेंट में लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा सेगमेंट में सिर्फ मेरे मैंने मेरे डेटा, डेटा हाँ। रिजर्व किया है ना। मैंने यहाँ पे कुछ भी यस निमोनिक्स सर। नहीं लिखा है। यस, क्योंकि ओके जो सर। भी निमोनिक्स मुझे लिखना है वो कोड सेगमेंट में लिखने वाला हूँ। और अब तक मैंने कोड सेगमेंट लिखना स्टार्ट भी नहीं किया है। यहाँ पे ओके मैंने ओके, सिर्फ, हाँ सर। हाँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने मेरे डेटा को रिजर्व करके रखा है डेटा सेगमेंट में। और मैंने आपको ये बताया कि टोटल 6 मेमोरी लोकेशंस आर रिजर्व नाउ। एक मेमोरी लोकेशन फिर से मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम। एक मेमोरी लोकेशन फॉर 20, सेकंड मेमोरी लोकेशन फॉर 10, थर्ड मेमोरी लोकेशन फॉर 30, फोर्थ मेमोरी लोकेशन फॉर 20, फिफ्थ मेमोरी लोकेशन फॉर आई डू नॉट नो द आंसर बिकॉज देर आई एम स्टोरिंग द सम। तो अगर मैं यहाँ पे 00 लिख रहा था, सम DW00, तो आई कैन से फिफ्थ मेमोरी लोकेशन में 00 और सिक्स मेमोरी लोकेशन में 00 बिकॉज टिल नाउ नो रिजल्ट हैज बीन कैलकुलेटेड। डू यू एग्री विद दैट? यस सर, समझा सर, थैंक यू। हाँ, ओके। अभी मैं यहाँ पे मैंने डेटा सेगमेंट को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। ये देखो, ये जो पहली लाइन थी दैट इज नथिंग बट योर स्टार्ट ऑफ डेटा सेगमेंट। ओके, अभी मुझे उसको एंड भी करना है, तो मैं एंड इसको कैसे करूंगा? डेटा अंडरस्कोर सेगमेंट ends, data underscore segment ends. So can I say this is the end of data segment? Yes. And this is the start of data segment? Yes. लेकिन ये डेटा सेगमेंट ही है, ये किसके, हाउ कैन यू कमेंट दैट दिस इज द डेटा सेगमेंट ओनली? वो हमको कोड सेगमेंट में लिखना है, वो हमको कोड सेगमेंट में लिखना है। ओके, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये डेटा सेगमेंट है। ओके, अब वो कैसे लिखना है, आई विल टेल यू हियर। नाउ दिस इज रिगार्डिंग द डेटा सेगमेंट। आई विल राइट डाउन नाउ फॉर कोड सेगमेंट। नाउ कोड सेगमेंट के लिए भी मुझे नाम देना है, तो यू कैन गिव योर ओन नेम। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो नाम दे रहे हो वो सेम नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। नहीं, ये डेटा सेगमेंट के लिए अलग नाम और कोड सेगमेंट के लिए अलग नाम। इसलिए कोड सेगमेंट के लिए मैं नाम दे रहा हूँ कोड अंडरस्कोर सेगमेंट एंड सेगमेंट। ये देखो, कोड अंडरस्कोर सेगमेंट ये एक नाम है। ओके, और वो नाम इज दैट इज सेगमेंट, बट आई डू नॉट नो वेदर दिस इज अ कोड। अभी मैंने कोड सेगमेंट लिखा है इसका, इसलिए आपको पता चल रहा है कि ये कोड सेगमेंट है। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूसरा नाम लिखता था तो आपको पता नहीं चलता था कि ये कोड सेगमेंट है या क्या है। तो इसलिए मुझे ये भी कोड सेगमेंट में नेक्स्ट 2 लाइन्स में मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ये मेरा कोड सेगमेंट है और ये मेरा डेटा सेगमेंट है। ओके, नाउ फॉर दिस आई कैन से दिस इज द स्टार्ट ऑफ कोड सेगमेंट, दिस इज स्टार्ट ऑफ सेगमेंट, दिस इज स्टार्ट ऑफ कोड सेगमेंट। यहाँ पे मैंने कोड सेगमेंट लिखा, इसलिए आपको समझ में आया कि ये कोड सेगमेंट ही है। लेकिन अभी देखो मैं आगे क्या लिख रहा हूँ। assume, now this assume is again directive, this is again directive। आपने देखा था DW डायरेक्टिव, वैसे ये भी assume डायरेक्टिव है। you cannot say this is an instruction, क्योंकि instruction will be converted into machine code, your this directive will not be converted into machine code। that is a major difference between the instruction and the directive। so assume is a directive। अभी मैंने क्या assume किया है, सी क्या लिख रहा हूं मैं अभी, CS, that is CS is nothing but कोड सेगमेंट, एंड कोड सेगमेंट का भी मुझे नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड अंडरस्कोर सेगमेंट कॉमा, और देखो मैं क्या लिख रहा हूं, दैट इज DS दैट इज अ डेटा सेगमेंट। आप कैपिटल भी लिख सकते हो, दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ अपर केस एंड लोअर केस। सो आई एम राइटिंग नाउ DS एंड दिस इज योर डेटा सेगमेंट, दिस इज योर डेटा सेगमेंट। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मेरा खुद का नाम, शोभित सेगमेंट, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे शोभित सेगमेंट, ठीक है, शोभित सेगमेंट नम 1 नम 2 ये ना सब लिखा है, और फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं शोभित एंड्स, शोभित सेगमेंट, शोभित एंड्स।
अभी आपको पता है कि ये जो भी लिखा है मैंने ये सेगमेंट के अंदर लिखा हो, लेकिन मुझे नहीं पता ये कोड सेगमेंट में लिखा है कोड या फिर डेटा सेगमेंट में लिखा है या फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट में लिखा है या फिर स्टैक सेगमेंट में लिखा है। तो ये जो लिखा है वो किस में लिखा है ये हमको यहाँ पे बताना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि मेरा डेटा सेगमेंट का नाम है शोभित, मेरा डेटा सेगमेंट का नाम है शोभित, मेरे डेटा सेगमेंट का नाम है शोभित। तब जाके उसको पता चलेगा यस ये शोभित से जो सेगमेंट लिखा है वो डेटा सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डीएस लिखा है। और यहाँ पे अगर मैं किसी और का नाम लिखता हूँ, यहाँ पे मैं किसी और का नाम लिखता हूँ, सपोज आई एम राइटिंग डाउन हियर, मैं मनीष का नाम लिख रहा हूँ, सो मनीष सेगमेंट। ओके, अब ये मनीष सेगमेंट अभी आगे जाके मुझको एंड भी करना है ना, मनीष एंड्स ऐसा लिखना पड़ेगा ना, मनीष एंड्स। तो वो मनी सेगमेंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने अभी डेटा सेगमेंट मेंशन किया डीएस, तो ये रह सकता है कोड सेगमेंट, ये रह सकता है स्टैक सेगमेंट, ये रह सकता है एक्स्ट्रा सेगमेंट, लेकिन ये मेरा कोड सेगमेंट है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा अज्यूम कि कोड सेगमेंट का नाम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MANISH मनीष। सो ये पता चल जाएगा कि ये जो लिखा है कोड सेगमेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाउ, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यस ठीक है, सर। मैं आगे हाँ समझाऊंगा। ओके, तो मैं इसको वैसे रखता हूँ। ओके, ये अज्यूम किया मैंने। तो प्लीज रिमेंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है कि अज्यूम इज नथिंग बट योर डायरेक्टिव, अज्यूम इज योर डायरेक्टिव। ओके, एंड इन अज्यूम यू हैव रिटन दैट कोड सेगमेंट इज माय मनीष, द नेम ऑफ दिस सेगमेंट में जो भी लिखूंगा वो कोड सेगमेंट रहने वाला है, और ये जो लिखा है ये मेरा, ये जो मैंने लिखा है ये मेरा डेटा सेगमेंट रहने वाला है। ओके, नाउ विद दिस इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। then start. Now I have given the label, I have given the label, okay, I have given the label again। लेबल लिखने के बाद जैसे मैंने बताया था कि योर फर्स्ट टू लाइन्स विल बी ऑलवेज देयर, ओके, एंड दोज लाइन्स आर मूव मूव ax कॉमा, अभी मैं वहां पे डेटा सेगमेंट लिखता था क्योंकि मैंने डायरेक्टली वहां पे डेटा सेगमेंट लिखा था, क्योंकि वहां पे मैंने डायरेक्ट डेटा सेगमेंट लिखा था। अभी यहाँ पे आपको पता है डेटा सेगमेंट का मैंने नाम दिया है शोभित। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मूव ax कॉमा, मूव ax कॉमा SHOBHIT शोभित। फिर से द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी मूव ds कॉमा ax, मूव dx कॉमा ax। सो ये क्यों कर रहा है, दिस इज टू इनिशियलाइज माय डेटा सेगमेंट, दिस इज टू इनिशियलाइज माय डेटा सेगमेंट, जो मैं पहले भी बता रहा था कि उसका जो डेटा सेगमेंट में जो मैंने जो भी डिफाइन किया है that should be linked with the ax value, so that is nothing but initialization of the data segment, that is the initialization of the data segment। okay, so this is the initialization, so ds comma ax, okay, then enter, then move। now actual my program will start here, program means my instructions। now can you see a mnemonics, move is a mnemonics। okay, so move, see what I'm writing now, move ax comma, I should write down num1, so I am moving my num1 value in ax now। okay, so num1, so move ax comma num1, enter, move, I am taking the second register that is bx, और उसमें मैं ले रहा हूँ num2, उसमें मैं ले रहा हूँ num2, num1 ax में num2 bx में, ax ही लिया, al क्यों नहीं लिया, क्योंकि num1 है 16 bit, I should use 16 bit of a register, so I have used two registers ax and bx। now I need to add them, so add ax comma bx, so you know ax value content and bx content will be added and the result will be stored into ax, but even though it is stored into ax, even I want the result should be also available in the data segment, and the data segment which variable, some variable, so I want to write down move sum comma ax, तो ax में जो भी वैल्यू है that will be moved into sum, that will be moved into sum। okay, so
After writing down the program is completed. I need to terminate the program. So you have to call to the interrupt number 03. ये मैं लेने वाला हूँ जब मैं interrupt पढ़ाऊंगा. I will explain you when I will be taking the interrupt. Okay. So int 03h. Now this is the terminating. We are terminating the program. After that I see जैसे मैंने यहाँ पे डेटा सेगमेंट को एंड किया था वैसे ही मुझे अभी इसको भी एंड करना है, लेकिन ये कोड सेगमेंट को मैंने नाम दिया था मनीष. ओके, सो हियर आई शुड राइट डाउन MANISH मनीष एंड्स. तो इस मनीष सेगमेंट से लेके यहाँ तक जो भी है ये कोड सेगमेंट में लिखा है. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है वो कोड सेगमेंट में लिखा है. ओके, सो मनीष एंड्स एंड मैंने लेबल जो लिखा था स्टार्ट उसको एंड करना पड़ेगा. सो एंड स्टार्ट. सो दिस इज योर प्रोग्राम. ओके, दिस इज योर प्रोग्राम. हमने पहले क्या लिखा था, जब मैंने टैजम आपको सिखाया था मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डेटा सेगमेंट लिया था. ओके, तो डेटा सेगमेंट मैंने जब लिया था तो आपको मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फिर डेटा लिखा था, सॉरी DS डेटा लिखा था और CS कोड लिखा था. ओके, तो मैं काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ गिविंग माय नेम आई विल राइट डाउन. तो आपको समझ में आएगा. या फिर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जो पहले मैंने किया था वही रखता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ नाम है. ठीक है, तो नाम देने से अच्छा मैंने डेटा सेगमेंट दिया और यहाँ पे मैंने उसको एंड किया. So data segment and ends here. Then you will start the code segment. So code segment. So my code segment name is CODE code segment and your data segment का नाम है data segment. Okay, and here start किया and I have to end here. So this is the code segment ends. Okay, so this is the program now. कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ मुझे ये प्रॉपरली बताना था आपको, तो वैसा मैंने किया. और ये INT करना है 03. ओके, दिस इज अ प्रोग्राम. आई विल नाउ सेव दिस प्रोग्राम. सेव एज करना है. अगर आपने पहले नाम नहीं दिया होगा डायरेक्टली आप यहाँ पे सेव कर सकते हो. ओके, अगर सेव करने जाओगे तो नाम पूछेगा. सो दिस इज द नेम ऑफ द फाइल. आफ्टर यू सेव द फाइल, come out of the program. So you have come out of the program. In the TASM now, you will be writing down in the DOS prompt, you will be writing down TASM and the file name with the extension of .asm. If there is some error, now there is error. See, I have found one error. Okay, हाँ ये देखो ऊपर लिखा है undefined symbol शोभित. तो मैंने कुछ तो भी शोभित को ये नहीं किया, यानी I haven't defined them. So I will do one thing. I will go back now, edit and AD16. ये समझ रहा है ना बराबर. एरर देखो 9 नंबर, लाइन नंबर 9 पे है, कुछ तो भी एरर है. ब्रैकेट में 9 दिख रहा है. ओके, और एरर नंबर 1 मैं पहले बताया था कि वार्निंग रहा तो भी चलेगा, एरर नहीं आना चाहिए. सो आई हैव टू गो बैक टू द एडिटर एंड आई हैव टू डू द चेंजेस नाउ. So line number is 9 now. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, it is there. शोभित मैंने वो उसको चेंज नहीं किया. So I should write down here what? I should write down here. Any one of you? What I should write? Yes. Data underscore segment. Again, go back, save, go to file, exit, again start TASM AD16.asm. Yes, now there is no error.
Then comes T-Link, AD16 without the instruction, without the extension. Okay. Then TD with AD16 with the extension of EXE, executable file. Okay, executable file, and enter. Yes. Now everyone pay attention now. अभी यहाँ पे आपको सब समझ में आएगा. अब तक आपको वो नहीं दिख रहा था जो I was able to show you. Now I will be able to show you properly now. Okay. मैं क्या करता हूँ? I won't go step by step. मैं क्या करता हूँ? मैं directly F9 दबाता हूँ. F9 means will run the whole program जो हमने लिखा था. Okay. Now I am pressing F9. You see the changes happening, and where is your this blue color line will go? This blue color line. Okay. I'm not pressing F8. I'm pressing F9. Yes. Can you see? It goes to INT. जहाँ पे मुझे प्रोग्राम को टर्मिनेट करना था. So it goes there. Now see, I want. अभी मैंने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं किया है. Okay. अभी डायरेक्टली मैंने F9 दबाया. So finally you will get the output now. Now tell me the addition of 1020 with 2030. So 1020 plus 2030, it gives me 0503. So it is 3050. So your answer is stored into AX now. Can you see the content in AX? Yes, it comes to be 3050. Can you see the content 3050? Yes. Sir? Okay. Then what is the content of BX? BX में मैं सर वो आपने रिजल्ट वेरिएबल जो बनाया था, अगर सर वो हम नहीं भी बनाते तो भी यही आता ना, मतलब आपने क्योंकि उसको मूव नहीं किया रिजल्ट में. हाँ चलेगा ना. नहीं मैंने किया है. मैंने इंस्ट्रक्शन में लिखा है ना, मूव सम कॉमा AX. मुझे आपको वो सम दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो सम मैं कहाँ पे दिखाऊंगा आपको? डेटा सेगमेंट में. डेटा सेगमेंट में मुझे दिखाना पड़ेगा ना आपको. हाँ, यहाँ पे मैं रजिस्टर दिखा पा रहा हूँ आपको. यहाँ पे सिर्फ मैं रजिस्टर दिखा सकता हूँ. और जो कुछ मुझे डेटा सेगमेंट में दिखाना है तो मुझे डेटा सेगमेंट में जाना पड़ेगा. तो अब तक हम डेटा सेगमेंट में नहीं गए, हम अभी हमारे रजिस्टर्स में ही बात कर रहे. तो रजिस्टर में मैं AX की जो बात कर रहा हूँ उसमें जो आपका आंसर है 3050. कैन यू सी हियर? यस. यस सर. नाउ BX में, हाँ BX में मैंने क्या वैल्यू ली थी? BX में मैंने लिया था 2030. कैन यू सी 2030? यस सर. Yes or no? Yes. Abhi now while doing the addition, you have got the parity. That is P is equals to 1. P is equals to 1 का मतलब even parity आई है, odd parity आई है. आपका parity flag 1 कब होता है? When it is even parity or odd parity? Any one of you? Sir, even, right? Yes. Your parity flag will become 1 when even number of ones are generated. Okay. अभी आपने दोनों को ऐड किया, आपको क्या मिला? 3050. इसको कन्वर्ट करो. 0 को आप क्या लिखोगे? 0000. 5 को आप क्या लिखोगे? 0101. 0 को फिर से क्या लिखोगे? नेक्स्ट 0 को 0000. और 3 को क्या लिखोगे? 0110. यस सर. इवन नंबर ऑफ वंस है 6. हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितना है? 4 है ना. तो 4 है, इसका मतलब इवन पैरिटी बोले तो वो 1 दिखाएगा. तो याद रखो, पैरिटी बीट 1 होती है जब इवन नंबर ऑफ वंस जनरेट होते हैं, और पैरिटी बीट 0 होती है जब ऑड नंबर ऑफ वंस जनरेट होते हैं. वो एडिशन रहने दो, सब्ट्रैक्शन रहने दो, कुछ भी रहने दो, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट आने के बाद अगर आप देखते हो उसमें अगर इवन नंबर ऑफ वंस होगा तो आपकी पैरिटी 1 होगी, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होगा तो आपको पैरिटी 0 होगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके. Then see, I am not interested in the extra segment. Can you see the extra segment की values भी यहाँ पे? But I am not interested in that. I am not interested. Even can you see the stack segment? Stack segment भी यहाँ पे. But I am also not interested in stack segment. Okay. I am interested in the code segment. I am interested in the registers value. अभी register value में देखो carry flag नहीं generate हुआ इसलिए वो 0 है. Answer 0 नहीं था इसलिए वो भी 0 है. Sign flag नहीं है इसलिए 0 है. Okay. So these are the, because this is a reflection of the answer created. Okay.
Now this is all about the registers and the flag registers and the code segment. और ये जब मैंने सब बताया था लाइन कितना कंज्यूम होता है और उसका मशीन कोड यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है निमोनिक्स और यहाँ पे रहते हैं ऑपरेंट्स, यहाँ पे रहते हैं ऑपरेंट्स. ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे रहते हैं ऑपरेंट्स, यहाँ पे रहता है निमोनिक्स, यहाँ पे रहता है निमोनिक्स और ऑपरेंट का रेस्पेक्टिव कोड, दैट इज कॉल्ड एज ऑप कोड और मशीन कोड. यहाँ पे रहता है वो इंस्ट्रक्शन कौन से लाइन पे एग्जीक्यूट हो रहा है और वो इंस्ट्रक्शन ने कितना बाइट खाया है, कितना बाइट खाया है. ओके, सो ये बताता, ये लाइन बताता है आपका इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी लाइन पे है और हर एक इंस्ट्रक्शन ने कितना बाइट खाया है. ये बताता है वो इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड. ओके, ऑप कोड बोले तो मशीन कोड, मशीन कोड बोले तो निमोनिक्स और ऑपरेंड का मशीन कोड में कन्वर्ट होके वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे बताता है आपका पूरा निमोनिक्स और यहाँ पे बताता है आपका ऑप कोड, सॉरी ऑपरेंट्स. ऑपरेंट्स मैंने बताया सोर्स ऑपरेंट, डेस्टिनेशन ऑपरेंट. So everything I have explained you. Okay, everything I have explained. Now the time has come to explain you the data segment. Where do you see the data segment? See the data segment in the view. Go to the view and go to the dump. Go to the view, go to the dump, enter. Can you see your data segment now? हमको इतने दिनों से वो यही नहीं दिख रहा था. Okay, so now ultimately we have got the data segment and now we have to analyze this data segment. I want every one of you to pay the attention now. Your data segment starts from 0 0 0 0. आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 0 0 है और यहाँ पे भी 0 0. ये 0 0 है कोड सेगमेंट के लिए. आपको बताया था मैंने, मेमोरी में मेमोरी में सेगमेंट्स रहते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट. तो कोड सेगमेंट में ये सब चीजें रहेंगी और आपका डेटा सेगमेंट में ये रहेगा. अभी मैंने डेटा सेगमेंट प्रोग्राम में डिफाइन किया था, मैंने क्या क्या डिफाइन किया था वो सब आपको अभी देखने को मिलेगा. आप देखो बराबर. अभी मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो कान खोल के, और मैं जो यहाँ पे कर्सर के थ्रू दिखा रहा हूँ वहां पे ध्यान दो. ओके, नाउ योर आई शुड बी हियर नाउ. नाउ 20 का मतलब ये होता है at the data segment at the memory location 0000 20 is stored. At the memory location 0001 10 is stored. At the memory location 0002 30 is stored. At the memory location 0003 20 is stored. And at the memory location 0004 50 is stored. And at the memory location 0006 5 30 is stored. ओके, अभी ये देखो क्या है. आपने नंबर लिया था पहले 1020, तो लोअर 20 बिट कहां पे गया? ये देखो लोअर 20 बिट गया एट द मेमोरी लोकेशन 0000. हायर 10 कहां पे गया? एट द मेमोरी लोकेशन 0001. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ. 0000 पे गया मेरा 20, 0001 पे गया मेरा 10. नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 0002 पे मेरा जाएगा 30. अभी जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा? 2030. उसमें से लोअर 30 कहां पे गया? 0002 पे गया. और 0003 पे क्या जाएगा? हायर 8 बिट, तो वो मेरा 20 है, ये वाला. ओके, ये हो गया. अभी ये होने के बाद मैंने बताया था मेरा रिजल्ट शुड बी स्टोर इनटू द सम. ओके, और सम के लिए आपने कितने 2 बाइट रिजर्व करके रखे थे, और वो रिजर्व करने वाला जो हमने रिजर्व करके रखे थे वो मेमोरी एड्रेस है 0004 और 0005. तो 004 में क्या गया? रिजल्ट का लोअर 8 बिट नंबर, और वो क्या है? 50. वो क्या है? 50. और 0005 मेमोरी लोकेशन में क्या गया? रिजल्ट का हायर 8 बिट नंबर, वो क्या है? वो है 3. वो है 3. So always remember, when you are dealing with 16-bit number, always lower 8-bit number will be stored first, then your higher 8-bit number will be stored. Okay, हम लिखते समय लिखते हैं
हम लिखते समय क्या लिखते हैं 1020, लेकिन स्टोर होते होते समय क्या हो गया, पहले 20 स्टोर बाद में 10। अभी लिखते समय मैंने लिखा था सेकंड नंबर 2030, तो पहले स्टोर हुआ 30 और बाद में स्टोर हुआ 20, और जो एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो था 3050, लेकिन स्टोर करते समय पहले लोअर 8 बिट दैट इज 50 और बाद में हायर 8 बिट दैट इज 30। सो कैन यू सी अ डेटा सेगमेंट, कैन यू सी दिस इज अ डेटा सेगमेंट, दिस इज अ डेटा सेगमेंट, एंड जो मैंने जो रिजर्व करके रखा था वो सब यहाँ पे है और रिजल्ट मेरा यहाँ पे। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस नाउ, वेरी क्रिस्टल क्लियर। सर एक डाउट है हाँ सर, अगर मैं जो मेरा AX है सर, उसमें मैं पहला मेरा नंबर स्टोर करता हूँ 16 बिट, फिर मैं BX में मेरा सेकंड 16 बिट नंबर स्टोर करता हूँ, हाँ और अगर सर मैं इन दोनों का ऐड करता हूँ डिफॉल्ट में, अगर सर जो मेरा रिजल्ट है वो AX में ही जाएगा ना सर, बराबर है, बराबर है। तो सर फिर वो जो मेरा पहला नंबर स्टोर किया था मैंने AX में, वो ओवरराइट हो जाएगा या वो भी डेटा सेगमेंट में? ओवरराइट 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 हो जाएगा। और ओके और एक सर। बात है, हाँ और एक बात है, आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा वो आप जो भी कुछ कर रहे हो वो कोड सेगमेंट में कर रहे हो, बराबर है। लेकिन अगर आपने डेटा सेगमेंट में कुछ भी स्पेस रिजर्व करके रखी विद द वेरिएबल का नाम, तो आपके कोड सेगमेंट में वो सब देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने डेटा सेगमेंट में वो देखने को मिलेगा, लेकिन अगर डेटा सेगमेंट में आपने कुछ भी रिजर्व करके नहीं रखा तो आपको डेटा सेगमेंट में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और सर हाँ, यानी ओके यानी सर मेरे यानी मेरे कहने का बात ये है कि अगर मैंने मेरे डेटा सेगमेंट में सिर्फ नंबर और num2 लिखा है और मैंने सम को डिफाइन नहीं किया है, तो मेरा रिजल्ट सिर्फ आपको AX में देखने को मिलेगा। और आप उन्हें अगर रिजर्व डेटा सेगमेंट में सम को रिजर्व करके नहीं रखा या उसको डिफाइन नहीं किया डेटा सेगमेंट में, तो आपका जो रिजल्ट जो है ना 3050 वो डेटा सेगमेंट में देखने को नहीं मिल रहा, जो अभी देखने को मिल रहा है। सर वो AX में नहीं जाएगा क्या फिर? AX में देखने को मिलेगा, क्योंकि AX में तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, एड AX कॉमा BX कर रहे हैं, तो AX में तो देखने को मिलेगा, रजिस्टर देखने को मिलेगा। ये दिख रहा है क्या, रजिस्टर AX यहाँ पे तो मिलेगा। लेकिन अगर मैंने डेटा सेगमेंट में उसको डिफाइन नहीं किया सम को या फिर जो भी वेरिएबल आपको चाहिए, तो ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे 50 और 30, ये वाला, यस सर। हाँ सर। ये आपको डेटा सेगमेंट में नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ। अभी यस सर। अगर आपको बाहर निकलना है तो यहाँ पे कहीं पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके फाइल में जाके क्विट करो। क्विट आने के बाद मुझे फिर से एडिट करने दो विद द फाइल नेम ad16.asm। मैं फाइल में गया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं यहाँ पे है ना रिजर्व नहीं करता, रिजल्ट जो मेरा आएगा ना उसको मैं डेटा सेगमेंट में रिजर्व करके नहीं रखता हूँ। यानी आई एम नॉट डिफाइनिंग द रिजल्ट इन द डेटा सेगमेंट में। ओके, बस मेरा इतना प्रोग्राम है, मैंने सम को निकाल दिया है। अभी इसको मैं सेव करता हूँ। सर वो मूव सम कमा AX को भी सर आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो सर कमांड नीचे। कौन सा वाला? हाँ ठीक है, हाँ ये वाला भी, हाँ ठीक, इसको भी निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ, सेव हो गया, बाहर निकलता हूँ, एग्जिट हो गया। अभी मैं करता हूँ tasm ad16.asm, so there is no error, then t-link ad16 without extension, then td ad16 with the extension of exe, enter, okay, F9 डायरेक्ट दबा रहा हूँ मैं। देखो मेरा आंसर आ गया, रजिस्टर में तो मिल जाएगा, देर इज नो डाउट, रजिस्टर में तो मिल जाएगा। ओके, अभी देखो मैं व्यू करता हूँ और डंप पे जाता हूँ। कैन यू डू यू ओनली यू विल बी एबल टू सी num1 num2 एंड नो रिजल्ट, क्योंकि मैंने रिजल्ट मेमोरी में मैंने मेमोरी में मूव नहीं किया है, रिजल्ट मेमोरी में मूव नहीं किया है, तो कोड सेगमेंट में मुझे लिखना पड़ता है मूव सम कॉमा AX। लेकिन सम क्या है, सम इज अ वेरिएबल which I have defined in the data segment. And I have stored I have reserved the location. How many? 2 bytes.
और 2 बाइट्स आपको कैसे क्या पता चला? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि 2 बाइट्स ही क्यों मैंने सॉरी 2 बाइट्स मैंने सेव करके रखा, ये आपको कैसे क्या पता चला? एनी वन ऑफ यू? 1 बाइट क्यों नहीं, 2 बाइट ही क्यों? आपको कैसे क्या पता चला कि 2 बाइट ही मैंने रिजर्व करके रखा है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द आंसर? सर आपने DW यूज किया था। Yes, yes, you are right. Only because I have used DW. Only because I have used DW. अगर DW नहीं करता था ना तो वो डायरेक्टली वो मुझे नहीं पता, मैं बोल नहीं सकता था कि मैंने 2 बाइट्स रिजर्व करके रखे। लेकिन अगर मैं वहां पे सम स्पेस DB लिखता था तो मैंने सिर्फ एक ही बाइट स्टोर की है, एक ही बाइट स्टोर की है, वो भी मैं आपको करके दिखाता। यहाँ तक सबको समझ में आया? इफ एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस, इफ एवरीवन इज हैप्पी विद दिस, आई कैन मूव फर्दर। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। सर एक कॉन्सेप्चुअल डाउट है, पूछूं क्या? हाँ सर मतलब जो कोड सेगमेंट है सर वो हाँ टेम्पररी डेटा स्टोर करता है, राइट? मतलब जब भी सर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम यस को सर, तभी वो डेटा रजिस्टर्स में स्टोर होगा। बट सर यस अगर मैं डेटा सेगमेंट की बात करता हूँ तो सर उसमें मतलब अभी जैसे इधर 0000 दिखा रहा है सर, मतलब हर न्यू प्रोग्राम के लिए, मतलब हर ओल्ड प्रोग्राम का भी डेटा इसमें रहेगा क्या? रहेगा ना। अगर डेटा सेगमेंट मैंने अगर सपोज 0006 मेमोरी लोकेशन में मैंने कुछ स्टोर के रखा है तो वो यहाँ पे दिखेगा, वो यहाँ पे दिखेगा। अभी वहां पे कुछ स्टोर नहीं, इसलिए सब ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है। लेकिन आपको ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, B8। मैं पूछूंगा आपको कि ये B8 कौन से मेमोरी लोकेशन पे है, तो यू विल से मी दैट दिस इज एट मेमोरी लोकेशन 0010 पे ये है। If I ask you what is there at 0011, you will say it is we have AD and so forth. Okay, जैसे यहाँ पे है यहाँ पे है 8B, तो आई विल से 0018 पे क्या मेमोरी लोकेशन क्या है, 8B है स्टोर। तो एक्चुअली हम जो भी कैलकुलेशंस करते हैं, अगर हमको मेमोरी में स्टोर नहीं करना है तो हम डेटा सेगमेंट में वहां पे डिफाइन नहीं करेंगे। हम सिर्फ टेम्परेरी रजिस्टर यूज करेंगे कोड सेगमेंट में और वहां पे स्टोर करके रखेंगे, या फिर दैट इज अ टेम्परेरी। और हमको अगर परमानेंटली स्टोर करना, परमानेंटली इन द सेंस अगर मुझे उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको सिर्फ वहां पे रखना है, क्योंकि क्योंकि बिकॉज फॉर एवरी ईच एंड एवरी प्रोग्राम वी आर यूजिंग AX BX CX DX ऑल द रजिस्टर्स वी आर यूजिंग। अभी एडिशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, बाद में सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे करना है, तो ऑल द टाइम्स आई एम यूजिंग दीज ऑपरेंट्स, दीज आर द ऑपरेंट्स। लेकिन मुझे आंसर मिलने के बाद उसको मेमोरी में कहीं तो भी रखना है। यू कैन नॉट से इट इज अ परमानेंट, क्योंकि उसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमको उसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट ऑपरेशंस वी आर एक्चुअली प्लेइंग विद दीज रजिस्टर्स ओनली, AX BX CX DX SI DI, जो हमने BIU में और EU में जो भी रजिस्टर्स देखे हैं ना, ये इनके साथ ही हमको खेलना है टू डू एनी ऑपरेशन। लेकिन अगर हमको उसको स्टोर करके रखना है अलग से, फिर बाद में उसको हमको हाथ नहीं लगाना है, या फिर उसका काम हमको बाद में लगने वाला है, तो वो हम रखेंगे डेटा सेगमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हाँ सर। हाँ, नो एनी क्वेश्चन? सिर्फ मुझे एक ही स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछते रहता है बस, बाकी लोगों को क्या समझ रहा है पता नहीं। ठीक है, डोंट इफ यू डोंट आस्क मी द क्वेश्चंस, बट आफ्टरवर्ड्स प्लीज गो थ्रू माय रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, एंड यू कम विद द क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मुझे और एक इसमें बात बतानी है। ये देखो, इसमें मैं कुछ चेंजेस करते रहता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, वैसे करने से क्या हो रहा है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मैं और एक दिखाता हूँ। देखो, इसको टाइम लगा तो चलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम प्रॉपर सिलेबस भी कर रहे हैं, हम एवरीथिंग वी आर डूइंग फाइन। हाँ, मुझे बताना था आपको कि हाँ, मुझे अगर यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ, सम, और मैं यहाँ पे DB लिखता हूँ और मैं क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, मैं DB लिखता हूँ, क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, मुझे बताओ अभी वो डेटा सेगमेंट में क्या आएगा? एनी वन ऑफ यू? सर सर हाँ वो सिर्फ एक ही इसके लिए रिजर्व करेगा, 2 हाँ बाइट, मैंने एक ही बाइट रिजर्व होगा सर सर। नहीं, या तो हाँ लोअर या हायर रेट पर। हाँ, नहीं, यू आर राइट। आपने क्या बोला, लोअर या फिर हायर? अब मैं आपको पूछता हूँ, मुझे स्पेसिफिकली बताओ, लोअर लेगा या अपर लेगा?
सर लोअर बाय डिफॉल्ट सर लोअर ही होना चाहिए ना। अभी जिसने मुझे आंसर दिया था उसने वो प्लीज गिव मी द आंसर, दैट गर्ल who had given me the answer, who had given me सर the, आई गेस लोअर ओनली बिकॉज पहले वही हाँ स्टोर होता है। अच्छा ठीक है, यू आर राइट, यू टेल मी लोअर, तो आंसर क्या रहेगा? सर तो 5 में मेरी लोकेशन। क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा? मुझे आंसर बताओ, आंसर जो डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा वो आंसर बताओ। सर 50। 50। यस 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 50 अभी मैं चेक करता हूँ क्या आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी जरा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मूव सम कॉमा AX, मूव सम कॉमा AX, ठीक है। अब इसको सेव करो, अभी देखते क्या होता है। एग्जिट, देन TASM AD16.asm, एंटर। एरर आया, कुछ तो भी एरर आया, दैट इज लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14। so go to the line number 14, then edit ad16.asm, लाइन नंबर 16 में कुछ तो भी प्रॉब्लम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर आपने वो 11 12 13 14 2 बाइट्स 15। को 1 बाइट में स्टोर किया सर। हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे ना, ये सर मूव सम कॉमा AX सर। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ AX पे लिखता, हाँ AL लिखता हूँ, हाँ AL लिखता हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन करते करते समय डिफाइन बाइट किया है, यानी 8 बिट किया है, और मैं AX को मूव कर रहा हूँ सम में, तो यहाँ पे डिस्पैरिटी हो रही है ना। ओके, अभी देखो मैं सेव करता हूँ, फिर से कुछ एरर आता है कि देखते हैं हम। सेव एंड एग्जिट। ये टाइम हो गया, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुको। नाउ यस, नाउ tasm डॉट AD16.asm and enter. Yes, there is no error now, there is no error. Yes, then t-link AD16, enter. Yes, going well. Then td AD16.exe, enter. हम यहाँ पे आ गए, आई एम प्रेसिंग F9, डायरेक्टली पूरा एग्जीक्यूट रन होगा। ये देखो आंसर मेरा 3050 बराबर है 2030, ये भी बराबर है क्या BX की वैल्यू? हाँ ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अभी मुझे देखना है डेटा सेगमेंट, गो टू व्यू and go to dump and see, yes, you will only see the lower, you will only see the lower, that is 50. so जो हायर जो 8 बिट है 30, वो आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैंने एक ही बाइट रिजर्व करके रखा था, that is by DB, that is by DB. I hope you have understood this. If you Yes, have sir. any questions, if you have any questions, now I think I have made you everything clear about the TASM environment. Now you can do in your system now. It will work in सर all एक the डाउट है हाँ हाँ बोलो बोलो। सर, आपको वापस एडिट वाले स्क्रीन पे जा सकते हो क्या? हाँ एक मिनट, एस्केप, इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना, कहीं पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद फाइल में जाना, फाइल में जाने के बाद क्विट करना, बाद में यहाँ पे क्या, एडिट जाओ, फाइल में जाओ, सॉरी प्रोग्राम में जाओ। हाँ सर। ओके, edit.16.asm, एंटर। हाँ सर इसमें हम लोगों को 16 बिट चाहिए, तो इसके लिए आपने वहाँ पे MOV sum AL किया है अभी नीचे। हाँ ये वाला। अगर हम लोग पहले से MOV AX के जगह पे AL लेते तो पूरा 16 साथ में आ जाता ना, लाइक मूव नहीं AL नहीं, num1 को AL में और num2 को BL में डाल के फिर AL को sum में डालते, तो क्योंकि फाइनल AL में स्टोर रहेगा ऐड AL BL के बाद। नहीं लेकिन देखो आपने क्या, आप जो मुझे पूछ रहे हो ना, वो आपका कहना है कि ऐड AL BX, ऐसा बोल रहे हो क्या आप? नाही सर, AL आणि BL दोन्ही num1 num2 घेतलंय मी, ऍड दोन्ही AL आणि BL ला केलंय, आणि मग नंतर मी हाँ मूव ALच करतोय सम मध्ये इन्स्टेड ऑफ अब AX BX। यस, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे अगर आपको सिर्फ लोअर 8 बिट को ऐड करना है ना, तो यहाँ पे AL दे दो, यहाँ पे भी BL दे दो। ओके, फिर यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप AL लिखो, यहाँ पे आप BL लिखो। हाँ अब ऐसा करो, अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, num1
AL में जाएगा क्या? पहली बात तो नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा ये 16 बिट का है। आप बोलोगे कि सर जाएगा क्या? ये नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर मेरा 16 बिट है और AL मेरा 8 बिट है। ठीक है, तो भी मैं एक बार करके देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, बाद में एग्जिट करता हूँ, बाद में यहाँ पे मूव पहले करना पड़ेगा। हाँ ना, अब वही देखता ना। रुको रुको, एक मिनट रुको। टैजम, अभी यहाँ पे एरर आएगा, टैजम AD16.ASM। अभी देखो क्या आ रहा है, कैन यू सी द एरर? ऑपरेंड टाइप डू नॉट मैच। ऑपरेंड 11 नंबर, लाइन नंबर 11 और 12 में ऑपरेंड टाइप्स डू नॉट मैच। ओके, दो एरर है अभी, वो दो एरर है 11 और 12 पे। हम देखते हैं 11 और 12 पे क्या है। इलेवन ट्वेल्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो ये वाला, ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम। तो आप ऑपरेंड मैच नहीं हो रहा है, नम 1 16 का है और AL 8 का है, इसलिए मुझे इसको AX ही लेना पड़ता है। लेकिन एडिशन के बाद मुझे सिर्फ AL की जो वैल्यू है ना, वो मैं मूव कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है AX इज इक्वल्स टू AL प्लस AH। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना, जो मूव कर रहा हूँ वो गलत हो रहा है, क्योंकि ऑपरेंड ही मैच नहीं कर रहे। तो मुझे यहाँ पे लिखना ही पड़ता है AX, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है BX, और दोनों मैच होने के बाद यहाँ पे, हाँ अगर AL कॉमा BL है। अब हाँ, अब ये देखो, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये भी मैं करके देखता हूँ। मैं सेव करता हूँ। मैंने क्या किया है, नम 1 AX में, नम 2 BX में, ये सब किया है, लेकिन ऐड क्या कर रहा हूँ, AL और BL को ही ऐड कर रहा हूँ। अभी देखते क्या होता है, और AL की वैल्यू सब में डाल रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल से इसमें एरर देना नहीं चाहिए, वो सिर्फ लेकिन लोअर 8 बिट पे ही काम करेगा। अभी विल सी व्हाट क्या करता है वो, कुछ एरर बताता है क्या? सी, देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर। क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है? सर 50। 50 50। तो भी हम एक बार करते हैं, ये लास्ट में एक बार करता हूं मैं। T-Link AD16.ASM without, yes, then TD AD16.exe, enter, okay, and F9। ये देखो 1050 आंसर जो आया, BX भी वही है, और आपका व्यू देखो क्या है, व्यू में डंप 2010302050। तो that is how it works। और कुछ डाउट है? परमेश्वरी मैडम, हैव यू टेकन द अटेंडेंस? मैं अटेंडेंस के बाद पूछ लेता हूँ सर, एक डाउट है मुझे। हाँ ठीक है, जिसको डाउट है इसके अटेंडेंस के बाद मुझे पूछना, जिसको डाउट नहीं है वो अटेंडेंस के बाद लीव कर सकते हो। परमेश्वरी मैडम, अटेंडेंस हो गया क्या? नहीं सर, लेना है। लेना है, ठीक है, ले लो फटाफट। नहीं तो मेरे ख्याल से परमेश्वरी मैडम, पिछले वाला जो अटेंडेंस है वही है शायद, सब वही है स्टूडेंट। मनीष बराबर है क्या? नाही सर, वाढलेत स्टुडंट्स. अच्छा, वाढलेत का? हो हो. बर घ्या लवकर घ्या मग. Students have roll number 1. Present, ma'am. 1 present. 2 present, ma'am. 3, 2 present, ma'am. 3 present. 4, absent 5, 5 present, ma'am. 6, 6 present, ma'am. 7, 7 present, ma'am. 8 present, ma'am. 9, 9 present, ma'am. 10, 10 present, ma'am. 11, 11 present, ma'am. 12, 12 present, ma'am. 13, 13 present, ma'am. 14, present 15, 15 present. 16, 16 present, ma'am. 17, 17 present, ma'am. 18, 18 present, ma'am. 19, 19 present, ma'am. 20, 20 present, ma'am. 21, Present. 22, Present, ma'am. 23, Present. 24, 24 present, ma'am. 25,
Absent 26, Present, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33. Absent 34, present 35, Present, ma'am. 36. Absent 37, 37 present, ma'am. 36 present, ma'am. okay, 38, 38 present, ma'am. 39, 38. 39 present, ma'am. 40, Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42 present, 43, 43 present. 44, 44 present, ma'am. 45, 45 present, ma'am. 46, 46 present, ma'am. 47, 47 present, ma'am. 48, 48 present, ma'am. 49, 49 present, ma'am. 50, 50 present, ma'am. 51, present, 52, 52 present, ma'am. 53, Present. 54, 54 present, ma'am. 55. Absent 56, 56 present, ma'am. 57, 55 present. Hello. huh? Okay, 56. present. Okay, 56. 56, 56 present, ma'am. 57, 57 present, ma'am. 58, 58 present, ma'am. 59. Absent 60, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 62 present, 63, 63 present, ma'am. 64, 64. Absent 65, 64 आपने मैसेज पहले क्यों लिख के रखा है? 64 प्रेजेंट, 65 जब मैं रोल कॉल 65 करती हूँ तब प्रेजेंट करो। 65 present, ma'am. 66 66 present, ma'am. 66 67 present, 68 68 absent, 69 present, 70 70 present, ma'am. 71 Present, ma'am. 72 Present, ma'am. 73 Present, ma'am. 74 Present, ma'am. 75 75 Present, ma'am. 76 absent. Roll number 4 25 Ma'am, 76 present. okay, roll number 4 25 59 68 absent. I'm 68 present. Wrote in chat box. Okay, अभी लिखा है ना उसने, देखा नहीं मैंने। 67 के बाद ही लिखा। ओके, मनीष और भुवना, कल का अटेंडेंस किसने लिया? मैम कल तो कोई मैम हमारे पास लेक्चर ही नहीं हुआ ना। कल लेक्चर ही नहीं हुआ ना मैम। नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। कल फाइनल ईयर का ये था ना प्रोजेक्ट वाइवा, तो लेक्चर्स किसी के भी नहीं हुए शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है चलेगा। थैंक यू। यस, जिसको डाउट नहीं है दे कैन लीव एंड अदर Sir. दोज हु डाउट कैन आस्क मी। यस सर मेरा डाउट है। सर हाँ परमिशन मैडम। हाँ बोलो। सर पूछो अपना डाउट बोले। सर मेरा भी एक डाउट है एक्चुअली। हाँ पूछो। पहले साहिब पहले को पूछने दो, फिर हाँ मैं साहिब बोलो। हाँ साहिब बोलो। हाँ सर मेरा डाउट था सर वो पहले का। सर जब भी हम लोग जब भी एक्स्ट्रा वेरिएबल डेटा सेगमेंट में सर डिफाइन नहीं करेंगे, हाँ तो सर वो उसमें स्टोर नहीं होगा, राइट? उसमें सिर्फ नहीं कोड में होगा। स्टोर होगा। हाँ तो Yes, सर अगर हम okay. लोग प्रोग्राम एंड करते हैं सर, एग्जिट करते हैं प्रोग्राम, तो हाँ सर तभी भी प्रीवियस प्रोग्राम का मेमोरी डेटा सेगमेंट में रहता है क्या, कि मतलब वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है? हाँ नहीं रहता है। अगर हम उसमें कुछ स्टोर कर देना तो वो डेटा सेगमेंट में रहता है, अनलेस एंड अनटिल वी ओवरराइट देम। तो सर हम लोग असेंबली लैंग्वेज में सर डिस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं क्या?
मतलब इसको हाँ। क्लियर करने के लिए, मेमोरी क्लियर करने के लिए? यस यस। नहीं नहीं, लेकिन आपको अगर क्लियर करना है ना तो वहाँ पे है ना कुछ तो भी गार्बेज वैल्यू की जगह अगर 0 0 रखते हैं ना तो वो 0 0 वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और अगर आपको रजिस्टर में कुछ गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए, उसमें अगर आपको क्लियर करना है तो आप कौन से भी रजिस्टर में 0 0 जाके स्टोर कर सकते हो। ओके सर, समझा। हाँ मतलब हाँ। सर अगर हम उसको क्लियर भी कर देंगे डेटा सेगमेंट को, तो भी प्रोग्राम को मतलब सर प्रीवियसली सेव्ड प्रोग्राम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? बिकॉज वो तो कोड नहीं सेगमेंट नहीं में आएगा। हम एग्जीक्यूट नहीं, करते टाइम रन होगा ही। हर प्रोग्राम के लिए डेटा सेगमेंट विल एक्ट एज अ न्यू स्टोरेज डिवाइस और एज अ न्यू स्टोरेज मेमोरी। So whatever you have written previously or stored in the memory, that will be refreshed and that will be used as for the second program. ओके ओके सर, समझा सर। हाँ, इसलिए आप क्या करो, अभी एडिशन के लिए लिखा है ना तो वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए लिखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखो, डिवीजन के लिए लिखो, लॉजिकल ऑपरेशंस करो, ये सब करो। और बाद में फिर वहाँ पे देखो आपके डेटा सेगमेंट में 0 0 0 लोकेशन पे क्या है, पहले क्या था, अब क्या है। अभी ये जैसे यहाँ पे भी देखो आपको दिख रहा है ना 0 0 1 0 में ये है। अभी ये नंबर मैंने थोड़ी डाले, ये वहाँ पे आ गए। ये प्रीवियसली कुछ तो भी प्रोग्राम रन किया होगा तो उसमें ये वैल्यूज वहाँ पे स्टोर हो चुके होंगे। आई डू नॉट नो। अब वैसा भी देखोगे ना, इसको डेटा सेगमेंट को और नीचे नीचे लेके जाओ, ये देखो बाकी सब तरफ 0 0 है। लेकिन स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में कहीं ना कुछ वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू, बट वो तो मैंने स्टोर नहीं की है, वो तो मैंने स्टोर नहीं की। तो ये नंबर जो है ना वो ऑटोमेटिकली नहीं आते, लेकिन हमने कभी अगर स्टोर करके रखे तो वहां पे वो जाके स्टोर होते हैं। ओके सर, समझा, थैंक यू। हाँ हाँ, ओके, यस। ओके सर, मेरा एक डाउट है। सर मैं जब प्रोग्राम रन कर रही हूँ ना तो वहाँ पे एरर आ रहा है, नो प्रोग्राम लोडेड। अच्छा, नो प्रोग्राम लोडेड। हाँ सर, 2 बार कोड टाइप किया, 2 बार अच्छे से सेव किया, फिर भी ऐसा ही एरर आ रहा है। क्या इशू होगा सर? आपने ये सेम प्रोग्राम स्टोर करके देखा था? हाँ सर। और आपने फाइल का नाम डॉस विंडो में दिया था? क्या सर, सॉरी? आपने जो प्रोग्राम सेव किया था वो प्रोग्राम का नाम, जो फाइल नेम है, वो आपने इनिशियली डॉस हाँ प्रॉम्प्ट में दिया था या फिर आपने प्रोग्राम लिखने के बाद वहां पे सेव एज करके स्टोर किया, सेव किया? शुरू में जैसे आपने किया था ना, में किया था मैंने, वापस उसके बाद जो भी कोड सेव किया, सेव अच्छा, किया। एक काम करो, आप एक काम करो, अभी देखो मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, फाइल में जाके मैं एग्जिट कर रहा हूँ, बाद में मैं यहाँ पे भी एग्जिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे EXIT कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ। आपके जो भी आप जो भी फाइल लिखते हो ना वो आपके टैजम के फोल्डर में जाता है, और आपका टैजम का फोल्डर कहाँ पे? सी ड्राइव में। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं मेरे पीसी में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मेरे सी में जाता हूँ, ये देखो सी दिख रहा है, ये सी वाला, सी में गया। सी में जाने के बाद देखो टैजम दिख रहा है, हाँ ये सर, टैजम। एक सेकंड। हाँ, ये टैजम में जा रहा हूँ। अभी देखो हाँ मैंने हाँ। जो भी, ये देखो टैजम में मैंने जो भी है ना सेव, ये देखो टैजम का फोल्डर। अब यहाँ पे देखो मैंने जो भी अब तक फाइल नेम, देखो मैंने फाइल नेम AD16। अभी इसको मैं अगर ओपन करता हूँ ना तो मैंने जो भी वहाँ पे सेव किया था ना वो यहाँ पे नोट पैड में आ जाता है। देखो इसका फाइल का एक्सटेंशन क्या .as है, ये देखो ये वाला है जो भी मैंने लिखा है, जो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अभी आपने भी क्या करना है, आपने क्या करना है, सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में जाने के बाद वहाँ पे टैजम 1.4 आएगा, उसमें आपको टैजम में देखना है, और हाँ टैजम हाँ, में, किया सर, उधर ही हूँ। हाँ अभी उसमें फाइल है क्या देखो आपकी? हाँ है सर, A16 है। AD16 है? हाँ हाँ तो फिर हाँ, वहां पे मैंने है। A16.asm सेव किया था। अच्छा ठीक है, लेकिन हेलो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ हाँ, तो हाँ मैं हाँ। बोल रहा था, आयुषी आयुषी ना?
हाँ सर। आयुष एक काम करो, आपका आपका स्क्रीन शेयर करो एक बार मेरे साथ, 1 मिनट में मेरा स्क्रीन ये करता हूँ। सर मैं फोन से लेक्चर फोन अटेंड कर रही हूँ और मैं लैपटॉप पे कर रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है। आयुष आप क्या करना, वहां पे अगर आ रहा है ना तो आप एक काम करो, आप है ना फिर से डॉस विंडो में जाओ और वहां पे आप जब एडिट और आपका फाइल नेम विद डॉट एक्सटेंशन विद डॉट एएसएम करते हो तो आप आपकी फाइल में जाते हो क्या? हाँ सर। हाँ सर, पहले एक बार ब्लैंक आया पर फिर मैंने वापस दूसरी बार पूरा किया ना, सेव एज वगैरह सब अच्छे से किया, तब खुला था मेरा। अच्छा तो अभी तो आप क्या अभी मैं वापस कर रही हूँ सर। हाँ अभी आप क्या करना, आप करना A16 आप करना एडिट और आपका वो फाइल नेम डॉट एएसएम ये करो और देखो फाइल में जा रहे हो क्या? हाँ सर, आया, ओपन हुआ। ओपन हुआ है ना? हाँ आया आया। तो इसका मतलब वो फाइल सेव है। लेकिन आप जब क्या करते हो, जब हाँ लास्ट वाला जो टीडी करते हो तब नहीं रन होता है क्या? हाँ सर, वापस करके देखती हूँ एक बार। हाँ एक बार करो। TASM A16.asm। यस हाँ, नो एरर। देन TD A16। विदाउट एक्सटेंशन। हाँ, अभी आता है प्रोग्राम नॉट फाउंड। हाँ, अच्छा प्रोग्राम नॉट फाउंड को ओके, फिर मैं रन कर रही हूँ अभी। हाँ वो आपने वो किया, टीडी किया, टीडी हेलो। आपने टीडी किया, हाँ सर, किया। टीडी हाँ हाँ, फाइल नेम विद अभी रन कर रही हूँ सर। डॉट डीएक्सी किया था ना? सर विदाउट एक्सटेंशन डाला। नहीं नहीं, आप जब टीलिंग करते हो तो विदाउट TD A16 डालना है। हाँ बाद में क्या करना, सबसे लास्ट में टीडी फाइल का नाम। अच्छा, तो TD नहीं मेरी बात सुन, हाँ लास्ट में क्या करना है, टीडी आप सर, आपका वॉइस ब्रेक। एक मिनट